السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن ایسے وقت میں اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں جب اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کو 10 روز ہو گئے ہیں اور اسرائیلی افواج کی جانب سے کسی بھی وقت غزہ میں زمینی کارروائی ہو سکتی ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن بدھ کو اسرائیل کے شہر تل ابیب جائیں گے، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ اسی روز وہ اردن کے دارالحکومت عمان میں شاہ عبداللہ، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں کے حوالے سے وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ صدر بائیڈن ایک بار پھر اپنا یہ موقف دہرائیں گے کہ حماس کے اقدامات فلسطینی عوام کے وقار اور حق خود ارادیت کے لیے نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ان ملاقاتوں میں غزہ میں لڑائی سے متاثر عوام کے لیے ضروری امداد پہنچانے کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد غزہ کے متاثرہ شہریوں کے لیے ضروری امداد کی فراہمی کے منصوبے کے معاہدے کا اعلان کیا۔ بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک ایسا منصوبہ تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے جو عطیہ دینے والے ممالک اور کثیر الجہتی تنظیموں کی طرف سے ہنگامی طور پر ضروری امداد کو غزہ کے شہریوں تک پہنچنے کے قابل بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ غزہ میں جلد سے جلد امداد کا بہاؤ شروع ہو، تاہم انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ حماس کے عسکریت پسند سپلائی پر قبضہ کرنے یا اس کی تقسیم کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازعات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسانی بحران کے بارے میں روس کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کے مسودے کو مسترد کر دیا ہے۔ قرارداد کا مسودہ 15 رکنی کونسل میں کم از کم 9 ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ قرارداد کے مسودے میں فوری، پائیدار اور انسانی ہمدردی کے تحت جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا، شہریوں کے خلاف ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کی پرزور مذمت کی گئی تھی، اور تمام یرغمالیوں کی رہائی، لڑائی سے متاثرہ شہریوں کے لیے امداد کی رسائی اور شہریوں کے محفوظ انخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ غزہ کے ساتھ تنازع جاری رہنے کی صورت میں مزاحمتی قوتوں کا صبر جواب دے جائے گا اور پھر انہیں کوئی روک نہیں پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک یہ نہ کہیں کہ انہیں روکیں، اس وقت انہیں روکنا کسی کی بھی بس میں نہیں ہوگا۔ خامنئی نے مزید کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کے جرائم کی وجہ سے اسرائیلی حکام کو مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے برلن میں جرمن چانسلر اولف شولز کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہ اردن اور نہ ہی مصر کسی بھی فلسطینی پناہ گزین کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی اس وقت اردن اور مصر میں کوئی فلسطینی پناہ گزین موجود ہے۔ اولف شولز نے غزہ کے شہریوں کے لیے ہنگامی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ فلسطینی حماس نہیں ہیں اور حماس کو ان کے لیے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حالیہ جنگ دونوں فریقوں کے لیے غزہ کی 5 جنگوں میں سب سے مہلک بن چکی ہے، جس میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 2778 فلسطینی ہلاک اور 11,000 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق 1400 سے زیادہ اسرائیلی مارے جا چکے ہیں اور 3,968 زخمی اور کم از
199 यरगमाल बना लिए गए हैं। तुर्की के एक आला सिफारतकार ने मंगल को कहा कि उनका मुल्क मुतादिद हुकूमतों की दरखास्तों के बाद गजा में 200 से जायद इसराइली और गैर मुल्की यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास के साथ राब्ते में है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने बैरूत में अपने लबनानी हम मनसब अब्दुल्ला अबू हबीब के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब तक हमें मुख्तलिफ ममालिक से अपने शहरियों की रिहाई की दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसके नतीजे में हमने उन मसाइल पर बातचीत शुरू कर दी है, खास तौर पर हमास की सियासी शाख के साथ। आलमी तंजीम रेड क्रॉस हमास पर जोर दे रही है कि उसे तकरीबन 200 इसराइली यरगमालियों तक रसाई दी जाए, जिन्हें उसके अस्करियत पसंदों ने अपने हमले में इसराइली इलाकों से अगवा कर लिया था। गजा में मैसूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने की कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। मिस्र और गजा की सरहद पर इमदादी सामान से भरे ट्रक खड़े हैं, जबकि गजा के मकीन और इमदादी कामों में मसरूफ तंजीमें पानी, खुराक और जनरेटरों के लिए ईंधन फराहम करने की मुसलसल अपील कर रही हैं। इसराइल की नाकाबंदी के सबब गजा की पट्टी में आबाद फलस्तीनी इन अशिया से महरूम होते जा रहे हैं। गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने के लिए पीर को यहूदी गिरोहों की क़यादत में दर्जनों मुजाहिरीन वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के गिर्द जमा हुए। मुजाहिरीन ने कदमे उठा रखे थे जिन पर तहरीर था कि जंग बंद की जाए। इस मुजाहरे के दौरान पुलिस ने व्हाइट हाउस के दाखिली रास्ते रोकने वाले मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए मंगल को बीजिंग पहुंचे। दौरे का मकसद यूक्रेन की जारी जंग में बीजिंग और मॉस्को के दरमियान करीबी ताल्लुकात को जाहिर करना है। बीजिंग में ये 2 रोजा सरबराही इजलास मंगल को शुरू हुआ, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर मरकूज है। पाकिस्तान के निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी इस फोरम में शिरकत के लिए बीजिंग में हैं। वजीर आजम ने बीजिंग में बेल्ट एंड रोड प्लेटफॉर्म के मौके पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से मुतालिक होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में चीनी सरमायाकार कंपनियों को पाकिस्तान में सोलर पार्क्स में सरमायाकारी करने की दावत दी है, ताकि मुल्क में दोबारा काबिल इस्तेमाल तवानाई की पैदावार को बढ़ाया जा सके। वजीर आजम काकड़ एक ऐसे वक्त में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं जब पाकिस्तान और चीन ने सीपैक मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर इस अहम राहदारी के दूसरे मरहले में तेजी लाने पर इत्तेफाक किया है। वजीर आजम चीन के सदर शी जिनपिंग से 2 तरफा मुलाकात करेंगे। तवक्को की जा रही है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। बीजिंग में वन बेल्ट वन रोड की तीसरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तालिबान का एक वक्त भी चीन रवाना हो गया है। वजारत के तर्जुमान अखुंदजादा अब्दुलसलाम जव्वाद ने कहा है कि चीन पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी सीपैक को अफगानिस्तान तक तौसी देने में दिलचस्पी रखता है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की शहरी इंतजामिया के सरबराह विताली बाराबाश के मुताबिक यूक्रेनी फोर्सेस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम शहर आदेविका पर 4 अतराफ से किए जाने वाले 15 रूसी हमलों को पसपा कर दिया, जबकि गुज़श्ता हफ्ते के वस्त में एक दिन में 60 हमले हुए। वाशिंगटन में वाक़ई इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूसी फोर्सेस ने जारहाना कार्रवाइयां जारी रखी थी, जिनका मकसद अवदीका को घेरे में लेना था। लेकिन इस इलाके में रूसी कार्रवाइयों के मुमकिन तौर पर कम होने वाली रफ्तार से अंदाजा होता है कि अभी कामयाबी बहुत दूर है। यूक्रेन की फौज ने पीर को कहा कि रूस ने गुज़श्ता रात 6 मिसाइलों और 12 ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों ने सोमवार की रात पेशावर प्रेस क्लब को मुहासरे में लेने और वहां एक गैर सियासी तकरीब में शिरकत करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतल्लिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सोमवार की सपहर मफकूरा नामी एक अदबी सकाफती तंजीम के ज़ेर एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तंजीम के सरबराह हयात रूहानी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 दीगर अफराद रात लगभग 10 बजे प्रेस क्लब से निकलते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। पेशावर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल ने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्स अफराद की आपस में शादी को कानूनी दर्जा देने से इनकार कर दिया है, लेकिन अदालत ने मरकजी हुकूमत को हिदायत की कि वो हमजिन्सों के हुकूक के बारे में फैसला करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, वो सिर्फ कानून की तशरीह कर सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में तरमीम का फैसला पार्लियामान को करना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले का खैर मकदम किया, जबकि बाज दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि हम जिन्स परस्त बिरादरी अपने हुकूक के लिए लड़ाई जारी रखेगी। बेल्जियम के दारुल ब्रसल्स में पुलिस ने उस शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया है जिसने स्वीडन और बेल्जियम के दरमियान मैच से चंद घंटे कबल पीर की शाम स्वीडन के 2 शायकीन को हलाक और एक को जख्मी कर दिया था। 45 साला अब्दुलसलाम और सईद के बारे में ख्याल है कि उसका ताल्लुक ट्यूनिस से है, जो पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद गैर कानूनी तौर पर बेल्जियम में मुकीम था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आइज़ा इरफान और न्यूज़ एडिटर नदीम याकूब के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।